السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ وارتقي کورس سورة الحاقة آیت نمبر 16 سے 19 تک. تجوید کے قاعدے دیکھ لیتے ہیں ان آیات میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 16. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وانشقت نون ساکن ہے تو ہم پہلے نون ساکن کے قاعدوں کو دیکھ لیتے ہیں ان سب آیات میں. تو نون ساکن کے جو قاعدے ہیں وانشقت نون ساکن ہے اس کے بعد شین ہے حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر 2 کاؤنٹ غنہ ہوگا نون کا. وانشقت السماء. اب دیکھتے ہیں آگے اور کہاں کہاں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے آئے ہیں. تو یہاں دیکھیے سیم آیت میں یومئذ واہیہ. یومئذ یہاں پر ہے تنوین اور تنوین کے بعد آیا ہے واو جو کہ ادغام یرملون لیٹر میں سے ایک ہے. تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے. ادغام ناقص ہوگا 2 کاؤنٹ غنہ کریں گے. یومئذ واہیہ. اور دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 17 میں بھی سیم آیا ہے یومئذ ثمانیہ. یہاں پہ کیا ہے یہاں پر ہے تو کسرتیں 2 تنوین ہے اس کی زیر کی لیکن آگے ثا ہے. ثا حرف جو ہے وہ اخفا حروف میں سے ہے تو یہاں ہم ادغام نہیں بلکہ کیا کریں گے یہاں پر ہم اخفا کریں گے جیسے ہم نے وانشقت میں کیا تھا نا. اسی طرح یومئذ ثمانیہ. آیت نمبر 18 میں بھی دیکھتے ہیں 2 جگہ پر نون ساکن اور تنوین کے قاعدے. یومئذ. اب یہاں دیکھیں تا ہے تو یہاں پہ تا جو ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے تو ہم یہاں اخفا کریں گے 2 کاؤنٹ. اور یہاں دیکھیں منکم نون ساکن اس کے بعد کاف حروف اخفا میں سے آیا ہے تو یہاں بھی 2 کاؤنٹ اخفا کیا جائے گا. منکم. آیت نمبر 19 میں یہاں دیکھیں نون ساکن ہے اس کے بعد حمزہ تو یہاں ہم نہ تو ادغام کریں گے اور نہ ہی ہم اخفا کریں گے. یہاں پر ہم نون کا اظہار کریں گے نون کو صاف پڑھیں گے. من اوتیا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ. من اوتیا من یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے لمبا. من اوتیا. تو یہ تھے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پورے جو ہمارے آج کا لیسن ہے اس میں حروف جو ہیں مفخم کون کون سے ہیں بھاری موٹے پڑے جانے والے حروف کون کون سے ہیں یہاں دیکھتے ہیں. وانشق قاف ہے یہاں پر آیت نمبر 17 میں. فوق یہاں بھی قاف ہے آیت نمبر 18 میں. بود ہے بود بو 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 بو. تخفا خا ہیوی آیا ہے دیکھیں یہاں پر بھی تخ تخ تخفا. اور یہاں بھی خا 2 خا ہیں ان کو ہیوی پڑھیں گے. خا یہاں بہت ہیوی ہوگا. آیت نمبر 19 یہاں پہ بھی فیقول قاف ہیوی ہوگا. مق 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 مقرأ کتابیہ. تو یہ تھے ہیوی پڑھے جانے والے حروف اس لیسن میں. اب دیکھتے ہیں مد. 4 کاؤنٹ مد کہاں کہاں آئی ہے تو نمبر 16 آیت میں یہاں شروع میں ہی ہے وانشقت السماء. 4 کاؤنٹ مد ہے یہ کیونکہ بعد میں حمزہ آیا ہے ماں مد بنی اصل اس کے بعد
असली मद बनी, उसके बाद हमजा आ गया तो उसने इस मद असली को, मद तबीई को 4 काउंट में बदल दिया। 2 काउंट थी, 4 में बदल दिया। और ये जो है ये मद वाजिब मुत्तसिल है। ठीक है, एक ही लफ्ज में हमजा और मद आए हैं, इसलिए इसको मुत्तसिल कहा जाता है और इसको कहा जाता है वाजिब मुत्तसिल। और यहाँ देखें आयत नंबर 17 में आला, हमजा आ गया, आला एक एक हर सॉरी एक लफ्ज है और अर्जइहा दूसरा लफ्ज है। तो यहाँ पर मद आला एक जगह आई है एक लफ्ज में और अर्जइहा दूसरा लफ्ज है। तो यहाँ इनमें फासला है, इनमें गैप है, तो यहाँ हम इसे कहेंगे मद जाइज मुनफसिल, मद जाइज मुनफसिल। तो यहाँ भी हम 4 काउंट करेंगे, अला अर्जा, या फिर ये भी ये देख लें अर्जा। यहाँ जो है देखें एक लफ्ज में जा मद बनी, उसके बाद हमजा आया, ये एक हर्फ में आया है, तो यहाँ पर हम इस मद को कहेंगे क्या, मद वाजिब मुत्तसिल। अर्जाइहा। और फिर यहाँ देखिए आयत नंबर 19 में भी यहाँ पर जो मद है हम देखें एक ही लफ्ज में है, तो ये जो है ये भी मद वाजिब मुत्तसिल में आती है, उमुक। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सा रूल है। अब देखते हैं रा, रा मुफख्खम और मुरक्कब, मोटी और बारीक रा कैसे पढ़ी जाएगी इन आयात में। तो यहाँ देखिए एक रा, एक तो ये राई है, यहाँ पर देखिए अला अर्जइहा, तो ये जो रा है ये साकिन है। और जब रा साकिन होती है तो हम उससे पहले वाले हर्फ की हरकत को देखते हैं। अगर उस पे फतहा दम्मा होता है तो हम उस रा को मोटा पढ़ते हैं, मुफख्खम पढ़ते हैं, और अगर उसके नीचे उस पर जेर हो, कसरा हो, तो हम उसको लाइट मुरक्कक यानी हैवी नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रात है तो साकिन, लेकिन उससे पहले हमजा के ऊपर फतहा यानी जबर है, तो ये रा कैसे पढ़ी जाएगी, मुफख्खम भारी। अर, अर, अर लाइट है, अर जो है ये मुफख्खम है। और आगे ये देखते हैं आरशा, यहाँ भी सेम सिचुएशन है, अर्जाइहा वाला। तो यहाँ भी रा साकिन है, उससे पहले आइन पे फतहा है, तो आरशा, आर, आर नहीं होगा, आर नहीं होगा, नहीं होगा, होगा आर, आरशा, आरशा। ठीक, रब्बी का रा यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर फतहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हमें पता है कि रा जो है वो हमने मुफख्खम हैवी पढ़नी है। आयत नंबर 18 में भी देखें, आयत नंबर 18 में देखें तो रदून, तो र तो रदून, और यहाँ पर आखिर में है मुकरा, मुक, मुकरा, रा। ठीक है, रा, रा पे डायरेक्ट फतहा है तो हम इसको हैवी ही पढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे हमारा, यहाँ पर 2 जगह पर हम देखते हैं कि हा के बाद वाव है और एक हा के बाद या है, क्योंकि वाव जिसमें है छोटा उसमें वाव सगीरा, उससे पहले हा पे क्या है, दम्मा है, तो यहाँ वाव आया है, और बियमीनी ही में हा पे कसरा है तो उसके बाद या आया है। तो ये जो है मद्द सिला सुगरा कहलाती है। जब भी कभी हाँ जो ज़मीर होती है जो एक गायब पर्सन के लिए होता है, तो उसमें उस पे ये लागू होती है जब उस हाँ पे और उससे पहले और अगले हर्फ पे हरकत हो, तो ये मद जो है ये वजूद में आती है। किताबहू बियमीनिही फयकूलु। ठीक है, 2 काउंट ये खींची जाएगी।
और फिर यहाँ पर देखें यहाँ पर कि हा उमुक, क़ाफ जो है ये कुतुब जदिन में से है, ये क़लक़ला हर्फ है, सो इसलिए हम इस पे क़लक़ला करेंगे, इसको हिला के पढ़ेंगे। हा उमुक़रअू किताबियह। अब एक चीज़ नोट करनी है आपने और कि सारी आयात जो हैं कि गोल ता पे ख़त्म हो रही हैं, ता मरबूता पे और एक हा साकिना पे, लास्ट वाली जो हमारी इस सबक की 19वीं आयत है। हमने जब भी रुकना है इस गोलता पे, जब कहीं भी कुरान में, तो हमने रुकना कैसे है, जैसे ये हमारी आखिरी आयत है ना, हा साकिन, इस तरह करके रुकना है हमने। कैसे? आयत नंबर 16, वाहिया, यह, ता नुक्ते उड़ जाएंगे, ऊपर जो भी हरकत है उड़ के यहाँ पर क्या लग जाएगा, सुकून, जैसे हमारी आयत नंबर 9 की किताबिया। ठीक है। फिर आयत नंबर 17 में समानिया, और आयत नंबर 18 खौफिया। ठीक है। और हा साकिन बहुत क्लियरली सुनाई देना चाहिए, आपने ऐसे नहीं रुकना, वाहिया, खौफिया, समानिया, या या ऐसे नहीं, यह हा साकिन महसूस होना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के कायदे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।